हेलो स्टूडेंट, लास्ट वाली क्लास में हमने चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन और उसका न्यूमन डिस्कस किया था। चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन में आप देख सकते हैं कि ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में थे। यहाँ पे ए वाला कार्बन और ए वाला कार्बन स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में थे। हमने इसका जो न्यूमन ड्रॉ किया था उसका वन कार्बन ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर सेल्फ, वन कार्बन टुवर्ड्स दी ऑपोजिट साइड और अवे फ्रॉम द व्यूअर। दैट मीन्स यहाँ पे हम फोर्थ नंबर सपोज कार्बन पे इक्वेटोरियल डैश में दिखाते हैं, तो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे एक्सियल है और इक्वेटोरियल है, वो इसके ऑपोजिट रहेगा। चलो अब हमें बात करनी है न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, राइट। सो न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, सपोज हम कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 बोल देते हैं इनको। सो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3 इज इन इक्लिप्स कन्फर्मेशन, कार्बन नंबर 6 एंड कार्बन नंबर 5 is in eclipse conformation. So let we consider this carbon number 2 and carbon number 3 as one ethane form. Carbon number 5 and carbon number 6 is in one ethane form, right? So here axial downside, here also axial downside, so we can call that carbon number 2 and carbon number 3 is in ethane form, but it is in eclipse conformation. So as we know that the eclipse form is less stable as compared to staggered form, so we can say that the both form of cyclohexane is less stable, or we can say that more energy as compared to chair form of cyclohexane. Why? Because in case of the chair form of cyclohexane, ethane conformation is in staggered, while in case of the both conformation, ethane form of two ethane form is in eclipse conformation, right? So first thing is there are two ethane eclipse form. Now carbon number 1 and carbon number 2, these two carbon number 1 and carbon number 2, same like carbon number 1 and carbon number 6. So we can say that carbon number 1, carbon number 2, carbon number 1, carbon number 6 bond, this is the bond. Carbon number 3 and carbon number 4, carbon number 4 and carbon number 5. So these four bonds are in gauche form. These four bonds are in gauche form, right? Now carbon number 3 and 2. So carbon number 2 and carbon number 3 as well as carbon number 5 and carbon number 6. These two bonds are in eclipse form. So first thing is this four bond is in gauche form, these two bonds is in eclipse form, and one more thing here, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 का जो एक बॉन्ड होगा यहाँ पे, वो हम उसको बोलेंगे फ्लैग पोल. So this is known as flag pole interaction. Flag pole interaction. So this is the flag pole of carbon number 1, this is flag pole of carbon number 2. This flag pole is like one type of ध्वज टाइप बोलते हैं ना, ए वाला. दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 का फ्लैग पोल इंटरेक्शन. सो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टू बॉन्ड्स रहेंगे वो एक दूसरे के नियर अबाउट रहेंगे. दैट मीन्स देयर इज ए सम टाइप ऑफ स्टेरिकल हिंड्रेंस बिटवीन दिस टू बॉन्ड्स. दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस टू बॉन्ड तो बोथ फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन की जो एनर्जी रहेगी वो चेयर से ज्यादा रहेगी. ये रहेगा आपका फ्लैग पोल. यहाँ पे जो बॉन्ड एक दिखा रहा है उसको हम बोलते हैं बाउस्पिरिट. इसको हम बोलते हैं बाउस्पिरिट. वन टाइप ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड. दिस इज वन टाइप ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड. हियर ऑल्सो बाउस्पिरिट. सो नाउ थ्री कंडीशन इज देयर. One is gauche form, second one is eclipse form, and the third one is the flag pole interaction. Now this three condition is responsible for the less stability of both form of cyclohexane than the chair form, less stability of both form than compared to twist bond. So twist bond conformation is more stable as compared to both form, that we will discuss in later on. But as of now there are three type of interaction: gauche, eclipse, flag pole. Now there are four gauche form. Now one gauche form increase the energy of the molecule 0.8 kilocalorie per mole. That's why the total energy is 3.2 kilocalorie per mole. So this is first thing. Second thing, two eclipse form.
Now, one eclipse form increase the energy of the molecule by 3.6 kilocalorie per mole. So the total energy due to the eclipse form is 7.2 kilocalorie per mole. Now the third condition is the flagpole interaction. Now one flagpole interaction increase the energy of the molecule by one flagpole interaction. Increased energy is the 1.2 kilocalorie per mole. The total energy 1.2. So now total energy of both form due to ghost form, eclipse form and flagpole interaction is 2, 4 and 6. 6, 7, 10 and 11. So total energy is 11.6 kilocalorie per mole. Now if we consider the chair form of cyclohexane, then chair form of cyclohexane carry only 4.8 kilocalorie per mole energy. So here 11.6 kilocalorie per mole energy. So we can say that both form is less stable as compared to chair form. यहाँ तक हमने दो फॉर्म की बात की है, तो हम दो को ही कंसिडर करेंगे, दो को ही कंपेयर करेंगे. सो बोथ फॉर्म इज लेस स्टेबल ड्यू टू मोर एनर्जी एज कंपेयर टू chair form. Is it okay? Now let me go for the Newman projection of cyclohexane. Chalo. Now this is the both form of cyclohexane. Carbon number 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now as we discussed, carbon number 2 and carbon number 3 is in eclipse form. So this is one ethane form. जो भी हम वो चेयर फॉर्म में हमने कंसिडर कर लिया था कि दो इक्लिप्स फॉर्म का है. ए कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 ऑल्सो इन इक्लिप्स फॉर्म. चलो इसको हम मॉडल के हिसाब से देखते हैं. सो दिस इज योर कार्बन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज कार्बन नंबर फोर्थ. सो 1, 2, 3, 4. दिस इज फिफ्थ नंबर कार्बन, दिस इज सिक्स नंबर कार्बन. चलो ऐसे हम देख सकते हैं. दिस इज द कंप्लीट बोथ फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन. चलो आप देख सकते हैं. दिस इज कार्बन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज कार्बन नंबर फोर्थ. सो हियर this green color ball shows that the flagpole interaction and this is the bowsprit. The red ball shows the bowsprit. These two one. This is flagpole interaction. So one flagpole interaction increases the energy of the molecule by 1.2 kilocalorie per mole. चलो अब हमने देखा है कि इसको हमें टू इक्लिप्स के हिसाब से देखना है. चलो एक कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3. चलो इसको हम ये से देखते हैं. तो दिस इज वन इथेन फॉर्म. कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. दिस इज कंप्लीट इथेन फॉर्म बट इन इक्लिप्स फॉर्म. सो वन बॉन्ड इज एग्जैक्टली बिहाइंड द सेकंड बॉन्ड. One bond exactly behind the second bond, one bond exactly behind the second bond. So we can say that this is one eclipse form of ethane. Same like here, carbon number 5 and carbon number 6. Carbon number 5 and carbon number 6 also one ethane form and eclipse form. So by considering these two ethane form, this is the both form. You can check that. Suppose कि हमें इथेन ड्रॉ करना है, तो इस इथेन का जो एक न्यूमन प्रोजेक्शन बोथ फॉर्म का जो न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे, उसका हमने चेयर फॉर्म में एक अप जा रहा था, एक डाउन जा रहा था. यहाँ पे ए भी अप जाएगा और पीछे वाला कार्बन का जो बॉन्ड है मीन्स यहाँ पे सेकंड नंबर एंड द फिफ्थ नंबर अटैच विद द सेम कार्बन, दैट इज द 1 नंबर. थर्ड कार्बन एंड द सिक्स कार्बन अटैच विद द सेम कार्बन, दैट इज द फोर्थ वन. सो ये दोनों बॉन्ड ही आपको अप साइड दिखाई देंगे. बोट चेयर फॉर्म में क्या था, एक बॉन्ड हम फर्स्ट नंबर का अप साइड दिखा रहे थे, तो फोर्थ नंबर ऐसे दिखा रहे थे ना. यहाँ पे सपोज के फर्स्ट नंबर है तो यहाँ पे फोर्थ नंबर है, ऐसे चलता था. ये अप जा रहा था तो ये यहाँ पे डाउन जा रहा था. यहाँ पे क्या रहेगा, दोनों ही अप साइड रहेंगे. अगर हम इसको न्यूमन में कन्वर्ट करेंगे तो दोनों ही बॉन्ड जो फर्स्ट के साथ अटैच है, फोर्थ के साथ अटैच है, वो दोनों ही अप साइड दिखाई देंगे. यहाँ पे हम देख सकते हैं. चलो ए वाला इक्लिप्स फॉर्म, ए वाला भी इक्लिप्स फॉर्म है. सो वन इथेन हियर, बट इसको हमें कैसे ड्रॉ करना है, इक्लिप्स फॉर्म में. ठीक है. सो दिस इज कार्बन नंबर 2, 3. यहाँ पे 1, 2, 3, ये 4, ये फिफ्थ वाला है और ये 6 वाला है. ठीक है. चलो तो अब इसको हम आगे ऐसे, सपोज कि हमने ड्रॉ ऐसे किया है,
ड्रॉ से हम इसको ऐसे घुमा देते हैं, मीन्स फर्स्ट नंबर कार्बन है इज टुवर्ड्स द व्यूअर आ जाता है, फोर्थ नंबर है अवे फ्रॉम द व्यूअर। सो फर्स्ट नंबर पे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है मीन्स बाउस्पिरिट हमने बोला है वो टुवर्ड्स द व्यूअर है, और यहाँ पे जो ये बॉन्ड है फोर्थ नंबर का इक्वेटोरियल बॉन्ड वो अवे फ्रॉम द व्यूअर दिखाना है हमें। ठीक है यहाँ तक। चलो बात करते हैं, इसको हम आगे घुमा लेते हैं, मीन्स के फर्स्ट नंबर कार्बन हमारी तरफ आ रहा है, फोर्थ नंबर पीछे की ओर जा रहा है। अगर फर्स्ट नंबर ऐसे कर देते हैं, चलो फोर्थ नंबर हमारी तरफ रहता है आप कैसे भी कर सकते हो, इसको आगे कर दो या इसको आगे कर दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो हम ये देखते हैं कि जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, ये जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है वो हमारी तरफ आ जाता है, फर्स्ट यहाँ पे तो सेकंड यहाँ पे रहेगा। चलो हम सेकंड को ड्रॉ करते हैं, ये जो सेंटर का डॉट पॉइंट है वो सेकंड नंबर कार्बन है, उसके पीछे कौन रहेगा, थर्ड नंबर कार्बन। सो दिस इज योर सेकंड नंबर कार्बन एंड दिस इज योर थर्ड नंबर कार्बन। ये सेकंड नंबर वाला कार्बन होगा, यहाँ पे जो पीछे वाला कार्बन है वो थर्ड नंबर। चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ए फिफ्थ और ए सिक्स, तो यहाँ पे जो डॉट वाला कार्बन रहेगा वो 6 रहेगा, पीछे वाला कार्बन है वो 5th रहेगा। देख सकते हैं ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, तो ये 6 वाला होगा, मीन्स सेकंड एंड 6 कार्बन इज फ्रंट में रहेंगे, 5th और थर्ड वाला कार्बन पीछे रहेगा। चलो ये सेकंड नंबर कार्बन है उसका एक्सेल डाउन में, चलो इसका एक्सेल डाउन में, इक्वेटोरियल ऑलवेज साइड में रहेगा, इसका इक्वेटोरियल ऑलवेज इसका साइड में। चलो फर्स्ट सेकंड का एक्सेल डाउन इक्वेटोरियल ऐसे साइड में। ठीक है यहाँ तक। थर्ड नंबर में सेम एक्सियल डाउन इक्वेटोरियल यहाँ पे। नाउ सेकंड नंबर कार्बन थर्ड नंबर के साथ तो अटैच है ही, क्योंकि सेकंड नंबर कार्बन थर्ड के ये पीछे वाला बॉन्ड हमें, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल रहेगा तो वो तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सेकंड और किसके साथ है, फर्स्ट के साथ। सेकंड इज अटैच विद दी फर्स्ट नंबर कार्बन। चलो ये थर्ड वाला किसके साथ कनेक्ट है, फोर्थ के साथ, तो थर्ड वाला का एक्सिल यहाँ पे दिखा दिया, इक्वेटोरियल यहाँ पे दिखा दिया, है ना, इक्वेटोरियल यहाँ पे दिखा दिया। तो और कौन बाकी रहा, यहाँ पे एक रहा, ये कौन सा वाला है, फोर्थ नंबर। ठीक है, चेयर फॉर्म में क्या रहता था, ये वाला डाउन में रहता था, लेकिन ये क्या रहेगा, अप में रहेगा। ये एग्जैक्ट पीछे है इसका, फर्स्ट नंबर एंड फोर्थ नंबर इक्लिप्स फॉर्म में, ये इसके एग्जैक्ट पीछे वाला रहेगा, लेकिन हमें 2 डायमेंशन में शो करना है तो थोड़ा सा हम नीचे रहेंगे। चलो 6 की बात करते हैं, ये वाला इथेन हो गया, सेकंड और थर्ड वाला इथेन हो गया। अब हमें 5th और 6th की बात करना है, तो 6 इज अटैच विद दी 5th वन। 6 का जो एक्सियल है वो डाउन में है, तो 6 का एक्सियल डाउन में, इक्वेटोरियल साइड में, और 6 इज अटैच विद दी फर्स्ट नंबर, तो 6 इज अटैच विद दी फर्स्ट नंबर। यहाँ तक ठीक है, मीन्स सेकंड एंड 6 कॉमनली अटैच विद दी फर्स्ट नंबर कार्बन, 6 and 2nd commonly attached with the first number carbon, as well as 5th and 3rd carbon is commonly attached with the 4th one। चलो 6 का हो गया, 5th का एक्सियल डाउन में, क्योंकि ये तो इक्लिप्स फॉर्म है, इक्वेटोरियल ऑलवेज इनसाइड, सो नाउ इट इज अटैच विद दी 4th नंबर कार्बन। यहाँ तक ठीक है। 6 और 2nd नंबर कार्बन कॉमनली अटैच विद दी फर्स्ट वन, 5th and 3rd नंबर कार्बन कॉमनली अटैच विद दी 4th वन। चलो अब हमने क्या किया था, मोलिक्यूल को ऐसे घुमाया था, मीन्स ए वाला आपका फर्स्ट नंबर कार्बन था, उसका इक्वेटोरियल टुवर्ड्स द व्यूअर आप दिखा रहे हैं, तो फोर्थ नंबर का इक्वेटोरियल अवे फ्रॉम द व्यूअर दिखाना है। तो फर्स्ट नंबर का इक्वेटोरियल आप वेज में दिखा रहे हो तो एक्सियल उसका डैश में रहेगा, अगर फोर्थ नंबर का यहाँ पे एक्सेल रहेगा और इक्वेटोरियल डैश में रहेगा। सो दिस इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ बोथ फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। चलो अब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि बोथ फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन कैरी 11.6 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी, while chair form of cyclohexane carry 4.8 kilocalorie per mole energy. So we can say that chair form is more stable as compared to boat form. यहाँ तक ठीक है। चलो chair form, boat form, and now the third one is the twisted boat form. Third one is the twisted boat form. चलो बोट फॉर्म को हमें ट्विस्ट करना है, बोट फॉर्म को हमें ट्विस्ट करना है। थर्ड वन इज दी ट्विस्टेड बोट फॉर्म। चलो
ए वाला आपका बोट फॉर्म है, ये फर्स्ट नंबर है, यहाँ पे है वो फोर्थ नंबर है, ये बोट फॉर्म है आपका एग्जैक्टली। ये फ्लैगपोल हो गया, ये बाउस्पिरिट हो गए, ये दोनों इक्लिप्स फॉर्म, ये दोनों इक्लिप्स फॉर्म। अब हमें क्या करना है, इसको ट्विस्ट करना है। चलो हम ट्विस्ट करते हैं इसको, आप देख सकते हैं ना, हम इसको ट्विस्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे, ऐसे हम ट्विस्ट करेंगे, चलो ये ट्विस्ट करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए वाला बॉन्ड मीन्स सेकंड नंबर, सपोज कि हम फर्स्ट बॉन्ड इसको बोलते हैं, तो सेकंड नंबर बॉन्ड एंड दिस इज फिफ्थ नंबर बॉन्ड, अप साइड मूव कर रहे हैं। ये सेकंड नंबर बॉन्ड और ये फिफ्थ नंबर बॉन्ड अप साइड में, देखो इसको हम ट्विस्ट करते हैं ऐसे, ठीक है। ये आपका बोट फॉर्म है, इसको हम ट्विस्ट करते हैं ऐसे। ए वाला जो बॉन्ड है इस तरफ और ए वाला बॉन्ड है वो पीछे की ओर हम ट्विस्ट कर रहे हैं। तो ये सेकंड नंबर बॉन्ड यहाँ पे जो दिखा रहा है वो ये सेकंड नंबर बॉन्ड और ये फिफ्थ नंबर बॉन्ड अप साइड मूव कर रहे हैं, देखो ठीक है ना। ये अप साइड हुआ, ये दोनों बॉन्ड अगर हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो ए वाला बॉन्ड और ए वाला बॉन्ड ये अप साइड की मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स सेकंड नंबर एंड द फिफ्थ नंबर बॉन्ड मूव्स टुवर्ड्स द अप साइड वाइल दिस वन, सपोज कि ये सेकंड है तो ये थर्ड वाला और ये सिक्स वाला जो कार्बन है वो डाउन साइड मूव कर रहे हैं। सो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 6 मूव टुवर्ड्स द अप साइड, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6 सॉरी कार्बन नंबर 5, ये वाला है ना, ये 2 और 5 सॉरी 2 एंड 5 मूव टुवर्ड्स द अप साइड एंड कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6 मूव टुवर्ड्स द डाउन साइड। चलो ये बोट फॉर्म का इक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे जो मिलता था ये कार्बन नंबर 2 3 5 6 ये इक्लिप्स फॉर्म में था। लेकिन जब हम इसको ट्विस्ट कर रहे हैं तो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 अप साइड मूव कर रहे हैं, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 6 डाउन साइड मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर इज अ स्लाइट डिस्टर्बेंस इन eclipse form of ethane. There is a slight disturbance of eclipse form of ethane. इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो टॉर्शनल स्ट्रेन है मीन्स बॉन्ड पेयर रिपल्जन जो हो रहा है वो स्लाइटली डाउन हो रहा है। जब हम इसको ट्विस्ट करते हैं तो कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 मूव अप साइड, कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 6 move downside. So due to this movement eclipse form of ethane is slightly disturbed. So यहाँ पे जो bond pair ये दोनों एक दूसरे के eclipse form में, so there is a bond pair repulsion which is we can call that the torsional strain is slightly decreases. So decrease कितना होगा, so boat form has total energy 11.6, इसकी एनर्जी में कितना डाउन रहेगा 1.3. So total energy of twisted boat form is 10.3 kilocalorie per mole. So we can say that twisted boat form is less energy as compared to boat form. So we can say that twisted boat form is more stable as compared to the boat form. यहाँ तक ठीक है। इसका न्यूमन हमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखने वाली है, दी ट्विस्टेड बोट फॉर्म इज ओनली फॉर्म विच शो chirality. Out of the 4 form of cyclohexane, chair board, twist board and half chair, only twisted board form shows the chirality only. यहाँ तक ठीक है। So this is the twisted board form of cyclohexane. Now we are moving towards the last form of cyclohexane, that is the half chair form. half chair कैसे आता है, by conversion when we go from chair to boat form. इसको हम ऐसे शोकेस करेंगे। चलो अगर हम इस ऐसे डाउन में चले जाते हैं तो ये क्या रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, सब हम इसको डाउन में ऐसे चले जाते हैं तो ये तो हमारा चेयर फॉर्म है। हमें क्या करना है, हाफ चेयर मीन्स ए वाला पार्ट है थोड़ा सा अप दिखाना है, ऐसे दिखाते हैं हम, तो ए हो गया हमारा हाफ चेयर फॉर्म। ए वाला चेयर अगर हम इसको डाउन में, सपोज के 6 नंबर वाला कार्बन है, अगर हम डाउन में दिखाते हैं तो चेयर फॉर्म हो गया। इसको हम उठा के थोड़ा सा अप ले लेते हैं तो 6 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा हाफ चेयर फॉर्म। ये हाफ चेयर फॉर्म है, उसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी नहीं रहेगा
वान बार स्ट्रेन भी नहीं रहेगा, एंगुलर स्ट्रेन भी नहीं रहेगा। इसके हिसाब से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा रहती है, एनर्जी सबसे कम रहती है। Stability of half chair form of cyclohexane is more and energy of half chair form of is less than any of the form of cyclohexane. So we can say that half chair form is more stable as compared to any other form of cyclohexane. यहाँ तक ठीक है? नहीं ठीक है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा रहती है। That means half chair form is most less stable and highest energy of cyclohexane। ठीक है यहाँ तक। सो हाफ चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी है वो सबसे कम रहेगी, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा रहती है। ठीक है। सो आप सीधी सी बात देख लेते हैं कि यहाँ पे टॉर्शनल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उसमें तो क्या था कि इक्लिप्स फॉर्म था, चेयर फॉर्म में स्टैगर्ड फॉर्म था, उसके हिसाब से उसकी एनर्जी प्लस माइनस रहती थी। यहाँ पे क्या रहता है कि ये तो बॉन्ड इसके बहुत नज़दीक आ गए, इसके हिसाब से इसमें एंगुलर स्ट्रेन रहेगा, मीन्स स्ट्रेन ड्यू टू दी एंगल्स, एंगुलर स्ट्रेन रहेगा, टॉर्शनल स्ट्रेन भी रहेगा, मीन्स बॉन्ड पे सपोज कि इसका बॉन्ड यहाँ पे दिखा रहे तो बॉन्ड पे रिप्रेजेंट भी रहेगा, दैट मीन्स इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी रहेगा। उसके हिसाब से इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी, स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। ठीक है यहाँ तक। तो दिस इज दी 4 फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अगर हम इसका एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज लेस स्टेबल, सो इसका एनर्जी डायग्राम ऐसे रहेगा। यहाँ पे रहेगी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे रहेगी स्टेबिलिटी ऑर्डर। सो चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल, दैट मीन्स उसकी एनर्जी सबसे कम रहेगी। ये चेयर फॉर्म की बात करते हैं। लेस स्टेबल कौन सा है? हाफ चेयर है। उससे कम स्टेबिलिटी किसकी है? बोट फॉर्म की। उससे कम स्टेबिलिटी तो क्या ट्विस्टेड बोट फॉर्म की। चलो ऐसे रहेगा। यहाँ पे आपका चेयर फॉर्म रहेगा। हाईएस्ट एनर्जी हाफ चेयर फॉर्म मीन्स लोवेस्ट स्टेबिलिटी। हाफ चेयर इज लेस स्टेबल ड्यू टू मोर पोटेंशियल एनर्जी। चलो हमने ये दिखाया है कि बोट फॉर्म की कंपैरिजन में ट्विस्टेड बोट फॉर्म की एनर्जी कम रहती है। दैट मीन्स ट्विस्टेड बोट फॉर्म इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू बोट फॉर्म। इसकी एनर्जी इसके हिसाब से कम रहती है ना, 1.3 किलो कैलोरी पर मोल जितनी कम रहती है। दैट मीन्स इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहेगी, बोट फॉर्म की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे रहेगी। ठीक है। यहाँ पे अगेन ट्विस्टेड बोट फॉर्म, और यहाँ पे रहेगा हमारा चेयर फॉर्म। ठीक है। कौन सा वाला कितना डिफरेंस है वो हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि चेयर फॉर्म इज मोर स्टेबल, हाफ चेयर इज दी लेस स्टेबल। सो दिस इज द कंप्लीट साइक्लोहेक्सेन विथ इट्स 4 फॉर्म ऑफ विथ स्टेबिलिटी ऑर्डर। थैंक यू।